In the previous video, we have learnt about the nomenclature of the elements with the atomic number greater than 100. So in this video, we will read about the atomic number with the greater number of इसको रिवाइज कर सबसे पहले we will revise that particular thing, the nomenclature of the elements that is greater than 100. So how do we nomenclature? So first of all, for 0 that is the nil, and the first one for 1 that is un, and for second that is bi, for third tri, for fourth quad, 5 pent, 6 hex and 7 sept, 8 is the oct, 9 is the n. सो एब्रिविएशन क्या होगा? 0 के लिए नील है तो नील के लिए n, 1 के लिए n, u, n बाई, b, t ट्राई, कॉड के लिए q, 5 के लिए पेंट के लिए p, एंड 7 के लिए हैश के लिए h, सेप्ट के लिए h, और 8th के लिए ऑक्ट है o, एंड 9th के लिए n दिस e. नाउ फॉर एग्जांपल 101, फॉर 101 आई कैन जस्ट सिंपली नेम एज अन. 1 फॉर 1 इज अन, 0 नील अन, दैट इज अन नील अन, एंड लास्ट में आई यू एम जोड़ेंगे तो अन लीन अन यम, यू एन ये वाली बन जाएगी अनलिन अन नील अनियम, यू एन यू. ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यू कैन अटेंड दिस क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स वन, सो देयर आर 4 subshells or there are 4 shells like S, P, D, F. The first is the S subshell and the second P, D and then F. So S starts from 1s, first shell is से start होगा ये, and then it goes. Now moving forward that P to 2P and D starts from 3D, third shell से start होगा D, and F starts from the fourth shell. So you can write it as like 1s 2s 1s 2s 2P 3s 3P 4s 3D 3D 4P then 5s 3 फिर 4D 5P 6s 5 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P 8S. सो इसको याद करने का एक तरीका और है, एट स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल. नाउ अब इसके बाद जहाँ पे भी एस है तो पहला बार ऐसा है तो 1, देन दूसरी टाइम 2, एंड उसी तरीके से जहाँ पे मैंने रेड लिखा है वैसे मैंने एस को नंबरिंग कर दी लगातार एज अ कंटिन्यूस पार्ट. एंड व्हेन द पी सबशेल कम देन पी का स्टार्टिंग यहाँ पे होगा 2 से. सो 2 से स्टार्ट करते हुए काउंटिंग आगे लेके जाना है, 2P 3P 4P 5P 6P ऐसे करके आगे लेके जाते हैं मैंने हम लोग को. देन मूविंग फॉरवर्ड कि एस सबशेल में जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं. So S subshell can contain maximum of 2 electrons and the P subshell can contain maximum of 6 electrons. And for the D subshell we can put maximum of amount of like 10 electrons. And for F subshell 14 electrons. Electronic configuration in the periods, first period की electronic configuration 2 elements हो सकते हैं, second में 8 elements and third में 8 elements. Highest value of n will give the period number of the elements. Now moving forward for the fourth period 18 elements, and the fifth period 18 elements, sixth period 32 elements, and the seventh period 32 elements. So 3D 4S 4P 6 electrons, like fourth period contains from 19 to 36 and the fifth period from 37 to 54, and the for sixth period it contains from 55 to 86. सेवन्थ पीरियड के लिए 32 एलिमेंट्स है, तो जहाँ 87 से लेकर के लास्ट 108 तक जहाँ तक कि आज तक डिस्कवर हुए हैं वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. सो एक यहाँ पे नोट है, और ये मैजिकल नंबर्स हैं, इससे आप पीरियड का जो भी एलिमेंट्स नंबर है वो आप याद कर सकते हो. कैसे? 2 8 8 18 18 32 32. सो 2 8 8 18 18 32 32. फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में कितना 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवन्थ में भी 32. फर्स्ट पीरियड जो है वो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, एंड द सेकंड पीरियड इज़ द शॉर्ट and the third is the short period also. Then fourth is long period, and fifth is also long period, and sixth is very long period, and seventh is a very long period. For electronic configuration in groups, elements of a group have similar valence shell configuration. It means same number of valence electrons and similar properties. It means electronic configuration जो है ना वो similar valence shell electronic configuration होती है, और जो same number of valence electron है वही रहते हैं with similar properties in a group. This is the classification of groups, how groups are classified. Now moving forward with the classification of elements in SPD. So for the S block में हम ऐसे याद कर सकते हैं, लीना की रब से फरियाद, यानी कि H लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, एंड देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, F for francium. So we can remember as group 1, and group 1 की वैलेंसी 1 होती है, and it is the
general electronic configuration for NS1. NS1 is the general electronic configuration. You can see that 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. So this is the S block elements of group 1. Now moving forward to group 2, that is a trick of remembering the group 2 elements is beta mange car scooter baprazi. सबसे पहले ये Be is the beryllium, magnesium, calcium, let me see कि क्या है सर का मतलब मैं भूल गया. हाँ, स्ट्रॉनियम, हाँ स्ट्रॉन्टियम है एसआर का फुल फॉर्म, स्ट्रॉन्टियम एसआर का फुल फॉर्म, एंड बीए का फुल फॉर्म है बेरियम, एंड आरए का फुल फॉर्म है रेडॉन. आरए रेडॉन के लिए स्टैंड करता है. तो नाउ आगे चलते हैं कि अब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 है. NS2 मतलब N की जगह पे कोई भी घुसा दो, 2, 3, 4, 5, क्योंकि यार ग्रुप 2 है तो 2 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना. ग्रुप 2 है तो 2 से स्टार्ट हुआ, व्हेन गोज़ अप टू 6, एंड आरए इज़ द रेडॉन. तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इसकी वैलेंसी 2 होती है. दे आर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लीजिए आप. एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2. And now moving again forward, so they are soft metals. It means S block are the soft metals with low melting and boiling points. They are all metals. Reactivity of metals increases down the group. It means reactivity जो है वो down the group increase करती है. चलो अब आगे देखते हैं कि S block जो एलिमेंट्स है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. They have low ionization enthalpy. Ionization enthalpy we will read in the next chapter of the chemical bonding. सो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स, एंड दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और ग्रुप 1 को हम लोग ना एल्केली मेटल्स बोलते हैं. ग्रुप 1 कौन सा, वो हलीना की रब से फरियाद वाला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड के दैट स्टैंड्स फॉर पोटेशियम. वही वाले ग्रुप को हम लोग एल्केली मेटल्स भी बोलते हैं, सिवाय H को, यानी कि H को आपको नहीं कंसीडर करना है, ठीक है. एंड ग्रुप 2 को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. एल्कली का मतलब क्या होता है, एल्कली का मतलब वो होता है कि बेसिस विच आर सोल्यूबल, यानी कि सोल्यूबल बेसिस को हम लोग एल्कली बोलते हैं. यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड, आपने शायद पढ़ा होगा. तो एल्कली को हम लोग बेसिस बोलते हैं. सिंपली एल्कली मतलब बेस, है ना. एसिड और बेस होता है ना, वही वाले बेस को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, NS1 से लेकर के 2. NS1 किसके लिए, NS1 है ग्रुप 1 के लिए, एंड ग्रुप 2 के लिए NS2. नाउ ये सब मैंने पहले बता दिया. नाउ मूविंग टू द P ब्लॉक. S ब्लॉक ख़त्म हो गया हमारा, अब P ब्लॉक आता है. अब P ब्लॉक में मैं आपको दिखा देता हूँ. P ब्लॉक में मेरे पास जो है वो हम लोगों के पास 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड यहाँ पर 18 एलिमेंट्स. सो देयर आर टोटल ग्रुप 18. सो फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 P ब्लॉक में आते हैं. सबसे पहले प्री ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 इट इज़ बोरॉन फैमिली. सो इसको आते हैं ट्रिक है बैगन आलू गाजर इन थैला, दैट इज़ बोरॉन, अल्युमिनियम, कैलियम, इंडियम, टेलुरियम. ग्रुप 13 को हम लोग बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप 13 इज़ नोन एज वाट, बोरॉन फैमिली. ग्रुप 13 इज़ नोन एज वाट, बोरॉन फैमिली. ग्रुप 14 इज़ नोन एज कार्बन फैमिली. सो ग्रुप 14 इज़ नोन एज कार्बन फैमिली. कार्बन फैमिली में एक और ट्रिक है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली याद कर सकते हो. चाहे शिवजी कहसने पार्वती, यानी कि ये खुद की ट्रिक है. C stands for carbon, SI silicon, GE germanium, SN for antimony and PB for lead. एंड ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली बोलते हैं. एंड ग्रुप 15 इज़ नोन एज द नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली मतलब उसको हम लोग निक्टोजेंस भी बोलते हैं. नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेंस भी बोलते हैं. वाई निक्टोजेंस, बिकॉज निक्ट इज़ द वर्ड, इट इज़ यूज फॉर द पॉइजन एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग पॉइजन्स. यस, यू हैव राइट कि हम लोग निक्टोजेंस यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका यूज़ हम लोग पॉइजन बनाने में करते हैं, इसीलिए हम इनको निक्टोजेंस भी बोलते हैं. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम NPAS SBBI. N stands for nitrogen, P phosphorus, A statin, and SB for antimony, and BI bismuth. Okay, so this is all. And sorry I said SN, यहाँ पे मैंने एंटीमनी बोला था, बट दिस इज़ टिन. SN को टिन बोलते हैं, दिस इज़ माई मिस्टेक. सो इसको याद करने की ट्रिक है, नाथू पापू आंसू सब बीमार. नाथू पप्पू आंसू सब बीमार, इसको याद करने की ट्रिक है NPAS SBBI. बट आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रिक्स काम करेंगी, बट आप इसको ऐसा मेमोरी के रूप में याद कर सकते हो ताकि आपको फील आए बर्थडे समय. ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, NS2 NP3. और ग्रुप 13 की क्या थी, NS2 NP1. एंड ग्रुप 14 की क्या थी, NS2 NP2. सो ग्रुप 16 मूव करते हैं. ग्रुप 16 इज़ द ऑक्सीजन फैमिली. अब इनको हम लोग चैल्कोजेंस बोलते हैं. चैल्कोजेंस वाई चैल्कोजेंस, बिकॉज चैल्को इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर और फॉर्मिंग
chalco is used for ore forming word. So chalco is a word that is means ore forming. Group 13 is the oxygen family. Group 13 is the oxygen family and chalcogens, chalco is the ore forming word. So group 16 की जो ट्रिक है वो क्या है, OSSETEPO यानी कि ओल्ड स्टाइल से टेपो. ओल्ड स्टाइल से टेपो का मतलब क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. SE stands for what? SE stands for selenium. ओके, सो यही ट्रिक थी ग्रुप 16. ग्रुप 17 मूविंग हाइलोजेंस दैट इज़ ऑल्सो नोन एज साल्ट्स. इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 16 की वो है NS2 NP4 एंड ग्रुप 17 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ NS2 NP5. ओके, नाउ ग्रुप 17 को याद करने का तरीका है फिर चली बाहर आई आंटी. ठीक है, फिर चली बाहर आई आंटी, इसको क्या हम लोग याद कर सकते हैं, यानी कि फ्लोरीन, chlorine, bromine, iodine and astatine. Now group 13 that is the last element, sorry that is the last group of P block. P block का last group group 18 है और इसको याद करने का ट्रिक है हीना, नेहा और करीना जीते रहें. यहाँ पे ZX है तो इसको Z मैंने पढ़ दिया यहाँ पे क्योंकि Z यहाँ पे देखें क्यों. यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन. तो ग्रुप 18 को ना हम लोग इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं. दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, आप इसको याद कर सकते हो. एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP6 है. ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हो. अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS2 से लेकर के NP16 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है. P ब्लॉक की क्या है, NS2 NP1 to लेकर 6. वाई, बिकॉज इसमें कितने ग्रुप्स आ गए, ग्रुप 13 से स्टार्ट हुआ था, ग्रुप 18 पे ख़त्म हुआ है. तो ऑलमोस्ट इसमें हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं आप गिन सकते हो. इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड ऑलमोस्ट 6 ग्रुप्स इसमें हमने कवर कर लिए. ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तो हमने यहाँ पे 6 ग्रुप्स कवर कर लिए हैं. ठीक है, अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और ये तो मैंने देखी थी. और ग्रुप P के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ब्लॉक P के बारे में. सो दे मोस्टली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स. कोवैलेंट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स. और आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हाईएस्ट एज़ कम्पेयर टू द S ब्लॉक. आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है P ब्लॉक की एज़ कम्पेयर टू S ब्लॉक. दीज एलिमेंट्स अलॉन्ग विद द S ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. यानी कि इन P ब्लॉक के एलिमेंट्स को अगर हम S ब्लॉक के साथ लेंगे तो हम इन दोनों को मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं. ठीक है, और मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं हम लोग, है ना. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड ग्रुप दैट इज़ D ब्लॉक एलिमेंट्स. और इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. आपकी NCERT की एक टेबल होगी पेज नंबर 79 में, उसमें आपका ये दिया हुआ है. ठीक है, अभी D ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. तो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 ये होते हैं क्योंकि 1 2 तो हमने S ब्लॉक में काउंट कर लिए. देन हमने कौन सा ब्लॉक पढ़ा, D ब्लॉक पढ़ा. देन हमने कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम अभी फिर हमने पढ़ा P ब्लॉक. देन हम पढ़ रहे हैं D ब्लॉक. तो D ब्लॉक में ना 3 सीरीज़ याद कर लेना, 3D 4D 5D. इनकी ट्रिक क्या ही करोगे, बहुत बड़ी ट्रिक हो जाएगी. उससे बेहतरीन है कि हम याद ही कर लें. अगर आप पीरियोडिक टेबल को 10 टाइम्स पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो ये देखो 3D सीरीज़ क्या है मेरे को याद है. स्केलियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ओके, हो गया ना. अभी ये देखो अभी 4D सीरीज़ है ना, एटोडियम, जिरकोनियम, नेविडियम, टेक्नीशियम, मोलिब्डेनियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम. ऐसे करके आप याद कर सकते हो. देन 5D सीरीज़ लैंथेनियम, हाफनियम, टंगस्टन, लैंथेनियम, हाफनियम, टेंटियम, टंगस्टन, रेडॉन, ऑस्मियम, इर्बियम, प्लेटिनम. उसके बाद हो गया हमारा गोल्ड. देन Hg इज़ द मरकरी. तो इस तरीके से याद कर सकते हो. मैं काफ़ी कुछ गलती मैं कर रहा हूँ बट आपको अच्छे से याद करना है. ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें बताया गया है एंटी पेनल्टीमेट शेल के बारे में और पेनल्टीमेट शेल के बारे में. सो पेनल्टीमेट शेल क्या होते हैं, पेनल्टीमेट शेल ये देख रहे हो ना, बीच वाला जो यहाँ पे प्रोटॉन है दैट इज़ द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो सेक्शन है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो ये एंटी पेनल्टीमेट शेल इसको बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल इसको बोलते हैं. दैट इज़ N-1 पेनल्टीमेट शेल होता है एंड N-2 जो है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है. एंड nth शेल इज़ द वैलेंस शेल. नाउ
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हमने तो एस का भी देखा, पी का भी देखा, नाउ अब डी का देखते हैं, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो n-1 D1 to 10 टू NS 0 to 2, दैट इज़ द पेनल्टीमेट, और ये आउटर मोस्ट शेल के लिए है, ठीक है। गॉट इट। तो मेन पॉइंट्स क्या थे, 3D सीरीज़ 4D सीरीज़ को याद करना है, और 5D सीरीज़ को नहीं याद होता है तो भी कोई बात नहीं, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अभी 3D क्या बता रहा है यहाँ पे, 3D सीरीज़ ये बता रहा है ना कि 3D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट ना 3D में ही फिल होगा। अभी 3D सीरीज़ का जो भी लास्ट एलिमेंट है ना वो 3D में ही फिल होगा। अभी कैसे 3D में फिल होगा आपको ये भी जानना होगा। चलो अब देखते हैं कैसे। कि देखो जैसे कि अभी अगर आप स्कैंडियम का जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे ना, तो आप लास्ट में क्या पाओगे कि 3D1 and 4s आ रहा है। तो इसका जो भी फिल हुआ ना वो तो 3D में ही फिल हुआ ना, लास्ट एलिमेंट है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3D सीरीज़ बोला है। इसको 4D में तो 4D में फिल होगा, एंड 5D में तो 5D में ही फिल होगा, ठीक है। दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो दे आर हार्ड एंड डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल्स विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर वेरी हार्ड। अभी देखो डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स के अंदर, यानी कि कॉपर दिख रहा है आपने ना, तो कॉपर को हम वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो ये हार्ड होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, और क्योंकि कॉपर तो इसमें आ रहा है ना, तो कॉपर को हम लोग डालते हैं ना वायर्स में। यहाँ देखो ये कॉपर ही लिखा हुआ है। एंड एक और बात तो मैं बताना भूल ही गया कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को ना हम लोग कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं, कॉइनेज मतलब सिंपली जिससे हम कॉइन्स बना सकते हैं। यानी कि प्रीवियस एजेस में, और जो भी मतलब सॉरी हिस्ट्री में हम लोग पढ़ा ही था बचपन में कि कॉइनेज मेटल्स यानी कि जो जिससे कॉइन बनाते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया और सिल्वर हो गए एंड गोल्ड, दैट वाज यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉइन्स at ancient times. Okay, so that point is clear to all of you, I think. And malleable means which can be drawn into sheets. What is the sheet? Have you ever seen some kind of sheet of metal? Like generally we see the sheet of iron sheet is commonly you can see that iron sheet in the hardware shop if you haven't. So उसी को malleable बोलते हैं कि जिस मेटल को हम लोग malleability वो होती है जिसको हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक दिस पेपर इज़ अ शीट। तो अगर कोई मेटल है तो उसको हम लोग ऐसे शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं ना। सो दिस इज़ नोन एज व्हाट, दिस इज़ नोन एज malleability. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट। यानी कि जो हमारे कौन से सेल डी ब्लॉक है ना, SPD, देन डी जो थर्ड ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही होते हैं। सो दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स एंड आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो ये कलर्ड कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं और इन्हों हम लोग कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को ना बढ़ा देता है। जैसे कि CuSO4.5H2O ये जो है कलर्ड कंपाउंड है और ये ब्लू कलर का होता है। इसको हम लोग नीला थोसा भी बोलते हैं। शायद मैंने 10th क्लास में, आपकी 10th क्लास की बुक में ये दिया हुआ है कि CuSO4 को हम लोग .5H2O को नीला थोथा हम लोग बोलते हैं एज अ कॉमन नेम। and blue vitriol is the common name for this CuSO4.5H2O. now moving to the transition elements. अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोगों ने बोला था ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, लाइक दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है उनकी ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। फॉर एग्जांपल Zn क्या होता है, Zn इज स्टैंड्स फॉर जिंक। सो जिंक की जो एटॉमिक नंबर है वो 30 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d10 है ना। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ग्राउंड स्टेट में ना जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। सो दिस इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम लोग Zn2+ की बात करते हैं, आर्गन 3d10। बस हो गया, ये है ना स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आप यहाँ पे देख रहे हो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+, देन आयरन 3+ वाली, देन मैंगनीज +5 वाली, देन ऑक्सीजन -2 वाली, देन फ्लोरीन की -1।
हाँ, अब सूडो ट्रांजिशन यानी कि जो सूडो मतलब समझ ही रहे होगे, सूडो मतलब फेक transition elements group 12 that are not considered as transition elements because of their D10 configuration, filled D10 configuration, यानी कि जिंक, कैडमियम और Hg का मतलब आप कमेंट में बताना कि इसको क्या बोलते हैं। और इनको ना ग्रुप 12 एलिमेंट्स ग्रुप 12 में आते हैं ये, तो ये लोग को ना हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं क्योंकि इनकी जो D10 वाली कॉन्फ़िगरेशन वो फील्ड होती है। हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे हम उन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, है ना। अब ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी कि सिंपल सी बात है कि डी एलिमेंट्स के सारे डी के जो सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे डी ब्लॉक के ही होंगे। पर ऐसा नहीं है कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होंगे। क्यों भाई, ऊपर नोट लिखा है देख लो, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स जो थे ग्रुप 12 के वो भी तो डी ब्लॉक में ही आते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि बाहर से आ रहे हैं तो ये भी डी ब्लॉक में ही आते हैं, बट इनके पास जो है वो डी जो इनकी डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है ना उसमें वो पूरी फील्ड है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने डेफिनेशन ही यही दी है ना कि इनकी इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, so all transition elements are d block elements but all d block elements are not transition elements। जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा पॉज लेना है और खुद से एक बार इसको बढ़िया समझने की कोशिश करना है। समझने चाहोगे तो समझ जाओगे, है ना। अभी ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, एड आंसर कैन कमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द f block elements। f block is the last block of our periodic table। f block जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। आपकी NCERT में भी यही चीज़ दी हुई है, पेज नंबर 79। वहाँ पे लिखा हुआ है कि F जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अभी इसमें दो आती हैं सीरीज़, अब क्या है 4F सीरीज़ एंड 5F सीरीज़। 4F को हम लोग ना लैंथेनॉइड्स बोलते हैं एंड 5F को हम लोग एक्टिनाइड्स बोलते हैं। लैंथेनाइड सीरीज़ जो है वो 58 से लेकर के 71 तक कंटिन्यू होती है एंड जो लैंथेनाइड्स है वो 6th पीरियड में ही आती है। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो वहाँ पे गौर किया होगा कि पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 डब्बे अलग से बने हुए थे एक लगातार कॉलम में, इट मीन्स वर्टिकली कॉलम बने होते। तो इनका जो मतलब है वो क्या होता है, तो यही लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड सीरीज़ होती हैं। सो लैंथेनॉइड सीरीज़ जो है वो एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 एंड एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो 4F सीरीज़ बोलते हैं उसको, वो 90 से लेकर 103 तक। दोनों में 14 एलिमेंट्स ही होते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो n-2 F1 से लेकर 14 तक होती है और n-1D 0 से लेकर के 1 तक ns2, है ना। अरे भाई F फिल होगा तभी तो D में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है देन आई विल मेक ऑल्सो द फिजिकल केमिस्ट्री वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। Now they are heavy metals with high melting and boiling point. Most of the elements of the actinide series are radioactive। इसका मतलब कि इनके जो है बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है F ब्लॉक की। वहीं हमने देखा था कि SPD यानी कि D ब्लॉक जो एलिमेंट्स थे वो तो काफ़ी सही थे, वो लोग सपोर्ट भी कर रहे थे और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हमने देखा भी था। दे वर नॉट हैवी मेटल्स, दे वर डक्टाइल एंड सो इसको आप कंपैरिजन के रूप में भी लिख सकते हो, यू कैन इन स्कूल एग्जामिनेशन और इन द बोर्ड्स। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज़ आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिवेशन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि शायद आपने पढ़ा होगा, बट रेडियो एक्टिव वो होते हैं ना जिसके हम लोग जैसे एटम बम के बारे में सुना है कभी, तो वो भी एक रेडियो एक्टिव से बनाया जाता है, वो वाली चीज़ भी ना इसी में आती है। अभी आप वो देखना 92 वाला कौन सा है, वही यहाँ पे रेडियो एक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है 236, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं एटम बॉम्ब बनाने में। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज़। एक्टिनाइड सीरीज़ मीन्स फॉर नॉट 5F सीरीज़। सो एक्टिनाइड सीरीज़ की जो होती है वो रेडियो एक्टिव होती है। सो एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पास। सो इसका जो यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है कि एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स।
सो आफ्टर यूरेनियम ना हम लोग उसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये 90 होती है इसकी एटॉमिक नंबर यूरेनियम का। अभी एक बात नोट करना है कि द ओनली लिक्विड एलिमेंट्स, मतलब कोई भी जो सिर्फ जो एलिमेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज़ आवर मरकरी। हम सभी ने मरकरी ज़रूर देखा है, और अगर नहीं देखा है तो देख लेंगे। मरकरी थर्मामीटर्स में प्रेजेंट होता है, नॉट डिजिटल थर्मामीटर्स बट दोज थर्मामीटर्स दैट वर यूज्ड एट, ऐसा लाइक जो पहले यूज़ किया थे ना जिसमें वो रीडिंग होती थी स्केल वाली, उसके अंदर मरकरी यूज़ होता है। एंड वो ना रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है, और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एक और है कि मरकरी के साथ साथ ब्रोमीन उसका भाई, वो भी वही है, वो भी एक मान है ना जो लिक्विड होता है, ठीक है। ऑल दो एलिमेंट्स सीजियम और रुबिडियम और फ्रांसियम एंड गैलियम वो भी जस्ट अब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, there are some questions that the elements in the liquid state at the room temperature, what is that? And don't see the answers, you can answer by yourself now। इसका भी आंसर आप कर सकते हो, पढ़ लो। the metals that has very low melting point and its position is closer to a metalloid is, आंसर कमेंट। मेथड ऑफ द प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। अभी हम कैसे पता करें भाई कि कौन से पीरियड का है, ग्रुप का है, कौन सा एलिमेंट? तो सबसे पहले ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो, एटॉमिक नंबर पता करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो, और जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी ना एन की, वो हमें उसका पीरियड नंबर दे देगा। एंड द ब्लॉक इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिटल सबशेल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ब्लॉक वो होगा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा ना, जो भी ऑर्बिटल, डिसाइडेड बाय द ऑर्बिटल और सबशेल, जो भी सबशेल और ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वही उसका ब्लॉक डिसाइड करेगा। अभी मान लो कि एस ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक आएगा तो क्या करना है, ग्रुप नंबर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। एंड फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू, अभी 10 जोड़ देना है, जितने भी नंबर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ना उसमें 10 जोड़ देना, तो भैया पी ब्लॉक लिए आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप नंबर, चलो अभी डी ब्लॉक के लिए देखो ग्रुप नंबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एन एस में होंगे प्लस कर देना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज n-1d। अभी फॉर एफ एल ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स जो होती है ना 58 to 71, तो बस उनके लिए क्या है, पीरियड 6 है और ग्रुप तो 3 ही है। और एक्टिनॉइड्स के लिए भी सेम है, जस्ट पीरियड 7 एंड ग्रुप 3, 90 to 103 कोई भी हो, ठोक देना एकदम सीधा सीधी। समझ में आया क्या? अभी एग्जांपल 1 देखो, दैट इज इक्वल्स टू 11 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ हमारे एस ब्लॉक, एस में तो भाई वो हो गया एस ब्लॉक का, और 3 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, जो कि पीछे लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर ये IOC की कॉपी है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन गिव्स द वैल्यू ऑफ द पीरियड नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। सो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन इज़ 3, देखो यहाँ पर, तो हमारा पीरियड 3 हो गया, एंड ब्लॉक एस हो गया क्योंकि एस में ही सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ है। और ग्रुप 1 बिकॉज आउटर मोस्ट शेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ग्रुप 1 हो गया, क्योंकि ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो ग्रुप जो है वो भी 1 हो गया। उस तरीके से सेकंड एग्जांपल है, दैट इज़ इक्वल टू 17। अभी लिखो नियॉन 3s2 3p6। अभी नियॉन का मतलब जिनको नहीं पता वो सुन लो भाई, नियॉन के कहाँ तक होता है, तो 1s2 2s2 2p6 को फिल करने के बाद हम उसको नियॉन लिखते हैं। तो नियॉन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप वो कमेंट करना। और आंसर है इसका ग्रुप 18, जिसको हम लोग नोबल गैसेस भी बोलते थे, पीछे हमने देखा था जिनको इनर्ट गैसेस भी बोल रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ Z इज इक्वल टू 118 इज़ द लास्ट एलिमेंट, एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो यहाँ पर। अभी देखो वैलेंस शेल है ना 7 है, तो यहाँ पर ना 5 भी गिनना और P भी, ये आपको देखना है, खुद से सोचना है। अभी यहाँ पे सम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ moving forward to the theory of another group block and period of an element. If the electronic configuration is given
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, then period is equals to 3. Argon 4s2 3d10 4p6 5s2, n is equals to 5, L is equals to 0. L is what? L is what? L is what? L is what? बताओ बताओ. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n plus L is equals to 5. n is the principal quantum number. L is what? L is what? Please comment. What is L? Now xenon 5d10 5d1 and 6s2, period is equals to 6, block is equals to d, and group is equals to 2 plus 1 is equals to 3. सो फॉर इसके लिए क्या है ना कि जिसका n+1 ज़्यादा है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा. एंड इफ़ सेम देन द n इज़ ग्रेटर, दैट इज़ द विच इलेक्ट्रॉन विल फिल. अगर n+1 इज़ द सेम देन n इंक्रीज और एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज metals, non-metals and metalloids. So metals, all S block and F block and D block elements are metals. Metals are usually solids at room temperature. Mercury is the exception. Gallium and cesium also have very low melting points, 303 Kelvin to 302 respectively. Metals usually have high melting and boiling point. Metallic reactor increases down a group and decreases along a period as we move from left to right. जितने भी एस एंड एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सारे मेटल्स होते हैं. मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे जनरली, बट गैलियम सीजियम जो है वो एक एक्सेप्शन है. और मरकरी के साथ में गैलियम और सीजियम, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 303 केल्विन है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो आप भाई वो कैलकुलेट कर लेना खुद से. एंड 302 केल्विन इज़ मेल्टिंग पॉइंट फॉर द सीजियम. मेटल्स यूजुअली हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप जाने पर एंड डिक्रीज़ करता है किसी भी पीरियड से लेफ़्ट टू राइट. इधर से इधर जाने पर डिक्रीज़ करेगा, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज़ करेगा. इधर से नीचे आए तो इंक्रीज़ हो गया मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ से यहाँ गए तो डिक्रीज़ हो गया मेटेलिक कैरेक्टर इन द पीरियोडिक टेबल. नॉन मेटल्स के लिए देखते हैं. टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन मेटल्स के पास में. नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स गैसेस एट द रूम टेम्परेचर विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. बोरोन एंड कार्बन आर द एक्सेप्शंस. बोरोन कार्बन एक्सेप्शन. नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है. बोरोन एंड कार्बन जो है वो एक्सेप्शन है क्योंकि इनका वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ दोनों ही होता है बोरोन एंड कार्बन का, इसीलिए एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स के केसेस में. सो और ये जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनका मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक सॉलिड्स आर ब्रिटल. ब्रिटल मतलब आसानी से टूट सकते हैं, और ये मेलिएबल भी नहीं होते. मेलिएबल मतलब मैंने बताया था कि शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको शीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये ब्रिटल होता है, इसलिए नॉन मेटालिक सॉलिड्स आर ब्रिटल. एंड नेटर मेलिएबल नॉट डक्टाइल. जब मेलिएबल ही नहीं तो डक्टाइल कैसे हो? किसी बारे में डालेंगे, कैसे डालेंगे तो ये टूट जाएगा ना भाई, इसीलिए इसको नहीं बोल सकते ये डक्टाइल होता है. अभी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वन ग्रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अभी देखो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा था, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो अभी इसको हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो भाई इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, इंक्रीज़ करेगा. अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज़. अगर मेटेलिक कैरेक्टर है तो वो डिक्रीज़, एंड अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है तो वो बढ़ता ही जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मेटालॉइड्स में मेटालॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स लाइज इन द बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल एंड द नॉन मेटल्स आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटालॉइड्स. यानी कि वो एलिमेंट्स दैट जो बॉर्डर लाइन पे लाई करते हैं, यानी कि ना तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है, तो उसको मेटालॉइड बोल दिया अपन ने. तो मेटालॉइड्स क्या होते हैं? नीदर मेटल्स नॉर मेटल और नॉन मेटल्स आर नोन एज सेमी मेटल्स और मेटालॉइड्स. इसकी एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक. Sb इज़ also an example. T is the tellurium, P is the polonium. भाई Sb बार बार भूल जा रहा हूँ मैं. Sb क्या है? 1 मिनट लेट मी सी कि Sb क्या है. 1 मिनट यार, अभी पता नहीं चला. Sb अभी बताता हूँ. शायद से ये एंटी मनी है. हाँ, एंटी मनी ही है. Sb एंटी मनी है. चलो अभी देखो. कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स बोरोन, अल्मुनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम. इसका वालेट ऑर्डर क्या होगा मेटालिक कैरेक्टर का? बताओ तो, बताओ. BLM. तो भाई जैसे बताया ना, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ हो जाता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाता है. ठीक है, ऊपर से नीचे आए ना मेटल में तो बढ़ जाएगा. समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है. अभी मेरे को जो समझ नहीं आ रहा था अब समझ में आ जाएगा उसको, है ना. ऊपर से नीचे आए तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ठीक है,
एक और क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना आप लोग। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है अगर हम लेफ्ट पे जाते हैं, यही बता रहा है एग्जाम्पल, ठीक है। अभी शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में समझते हैं। व्हाट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो देखो, ये ना प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ शेल्स बना दिया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ना ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करते हैं, तो इसी रिपल्शन की प्रॉपर्टी को ना शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये सारे रिपेल इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले ना बाहर वाले को रिपेल करते हैं, बाहर वाले को रिपेल करते हैं, ध्यान रखना, बाहर वाले को रिपेल करते हैं। तो और भाई ये इसको अट्रैक्ट भी तो कर रहा होगा ना, तभी नहीं टिका, मैंने तो कभी आता ही नहीं यहाँ पे। ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पर ये सब जो है ना, ये सब इसको भगा रहे हैं। मान लो कि ये तुम्हारे टीचर है, ठीक है, और तुम टीचर से पढ़ने आ रहे हो, बट ये तुम्हारे कुछ बदमाश दोस्त हैं जो तुमको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तुम्हारे टीचर हैं जिसे तुम पढ़ने के लिए आ रहे हो। तो बस ऐसा ही कॉन्सेप्ट एक समझ लो, चाहे जैसे भी तुमको समझना है तुम समझ लो। बस ये समझना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो आउटर को रिपेल करते हैं। चलो अब डेफिनेशन देखते हैं और इसका लैंग्वेज देखते हैं। सो डिक्रीज इन द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। यही चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल and is applicable for the multi-electron species, and always attraction forces is much greater, if not the electrons will not revolve। देखो ये जो है ना, जब भी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज किसके प्रेजेंस के लिए कारण से, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण से आउटर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। So it is a shielding of outermost electrons from the nucleus by the inner shell E। समझ में आया? इसीलिए हम लोग उसको शील्डिंग ऑफ outermost इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल ई। फिर बताओ भाई, एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, एप्लीकेबल किसके लिए है? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी ये जो है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स इज़ मच ग्रेटर, अगर जो अट्रैक्टिव फोर्स वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर ऐसा नहीं होगा ना तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही नहीं करता है, रिवॉल्व ही नहीं करेगा, सॉरी। अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स के कारण से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। मैंने पहले भी बताया था, नहीं बताया तो अभी देख ले। ऑर्बिट ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑर्डर क्या होता है? तो सबसे पहले तो एस स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, एस और पी। एस सबसे ज़्यादा, उसके बाद पी है, फिर डी और एफ है। भाई डी और एफ पूरा पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। ये लोग किसी को लात बात नहीं मारते, ये लोग सीधा रखे रहते हैं, भाई कोई बात नहीं रह ले। बट एस और पी को एकदम जायज़ नहीं, ये लोग लात मारते हैं ज़बरदस्त बाहर वाले को, ठीक है। अभी ये आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है जो पास नहीं आने देता है, एस है। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी है जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्सपीरियंस करता है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, लात मारा जा रहा है, तो वो कोई अट्रैक्शन फोर्स तो होगा ना। जो टीचर थे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो कोई तो अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसके कारण से वो अंदर रहना चाह रहा है, वरना वो क्यों आना चाहेगा क्लास में, है ना, वही बात है। तो उसके लिए क्या अट्रैक्शन फोर्स है, जो उसकी वैल्यू क्या है, वही है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको अपन जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 10 मान लो 10 एक वैल्यू है, 10 वैल्यू से अट्रैक्ट किया जा रहा है और 3 वैल्यू से रिपेल किया जा रहा है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा ही होगा और रिपल्शन फोर्स ऑलवेज़ कम होगा। सो नेट अट्रैक्शन जो होता है वो अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन हो जाएगा। समझ में आया? नेट अट्रैक्शन मतलब कुल मिला के कितना अट्रैक्शन है उस पर, यानी कि टोटल अट्रैक्शन कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अट्रैक्शन को माइनस कर देंगे रिपल्शन से। 10 - 3 जो 7 आ जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखो। अभी देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज माइनस रिपल्शन। न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा उसका। समझ में आया क्या? अभी ये सिग्मा इसको साइन को ना सिग्मा बोलते हैं, ध्यान रखना, सिग्मा बोलते हैं इसको। और ये रिपल्शन के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इसके लिए स्लैटर्स रूल आएगा जो सिग्मा की वैल्यू बताएगा। स्लैटर्स रूल, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन। पहला रूल क्या है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड ऑफ एन एटम हैज़ द फॉलोज।
सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कैसे? वैसे सिंपल नहीं, यहाँ पर ग्रुप बना के लिखना है। जी 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p। तो क्या करना है ना, 1s को एक ग्रुप में डाल दिया ना ऐसे। हाँ, ये ब्रैकेट मैंने जानबूझ के दिया, ऐसे कोई मजाक का नहीं है, यही तो मेन रूल है, गोल्डन रूल बोलते हैं इसको। ये 1s आ गया अलग में, ये 2s 2p को एक अलग भेज दिया, दे दिया ब्रैकेट, ये 3s 3p को एक में, और ये 3d h r अकेला, फिर 4s 4p साथ में, फिर 4d अलग, फिर 4f अलग, फिर 5s 5p। इस तरीके से ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब देखो एग्जांपल, ये जनरल जैसे हम लोग लिखते हैं नॉर्मली 1s2 2s2 3s2 3p6 3p5। क्लोरीन का है 17 एटॉमिक नंबर है। अब इसी को हम लोग स्लैटर्स रूल में जो लिखा लगाने के लिए स्लैटर्स रूल, हम लोग स्लैटर्स रूल लगाने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से। समझ में आया ना? एक और एग्जांपल है मैंगनीज़ का, 25 होता है इसका एटॉमिक नंबर। मैंगनीज़ का क्या होता है? 25। इसको लोग जनरली तो एक्चुअली में हम लोग ये लिखते हैं, बट हम लोग स्लैटर्स रूल लगाएंगे तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, सेकंड क्या है? फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एस और पी शेल, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रुप मेड बाय द कंसर्न इलेक्ट्रॉन्स हैव नो कंट्रीब्यूशन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं ना। जैसे कि मान लो हम लोगों ने अभी सेकंड रूल थोड़ा समझ में कम आता है, ये समझ में कम किसको आता है? मेरे को कम आता है, तुम लोग को आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये देखो, मान लो मैंने इसको कंसर्न इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसको लेना है कंसर्न इलेक्ट्रॉन ना। अभी इसको अपन यहाँ पे बिल्कुल नहीं गिरेंगे, इसको भगाओ यहाँ से। क्यों भगाओ इसको यहाँ से? क्योंकि अब ये तो आउटर मोस्ट हो गया ना, इससे क्या मतलब है? हम लोग इसको कंसर्न कर रहे हैं तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर थोड़ी लगाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। इस पर लगाए चाहे ना लगाए, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता है स्लैटर्स रूल में। इसको कंसर्न अगर इसको कंसर्न मानते तो इसको होता, बट हमने इसको कंसर्न यानी कि इसको लिया है यहाँ पे, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे कंसर्न इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, कंसर्न इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये ना इस पर इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिग्मा से। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते। अभी है ना, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम शेल हैव कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो उसके सेम ही, यानी कि कंसीडर इसको किया, अब इसी के में प्रेजेंट है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 0.35 ईच होता है। 1 है तो 0.31 0.35 इंटू 1, 2 है तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाओ 2 से 0.35 को। अभी सी का देखो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द n-1 शेल हैव द कंट्रीब्यूशन 0.85। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द n-1 शेल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 0.85 होता है। अगर n-1 करेंगे, पहले तो हम लोगों ने n का लिया, फिर n-1 का 0.85 होता है, फिर 3 का डी। देखो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट द डी n-2 शेल हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1, यानी कि n-2 कंट्रीब्यूशन 1 होता है ईच। n-2 का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। अभी देखो एग्जांपल क्या होता है, कैल्शियम कर लेते हैं ना, Z=20। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखोगे भाई? सिंपल वाला नहीं लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s3 को क्यों कंसिडर नहीं करें? क्योंकि हम लोगों ने कंसर्न इलेक्ट्रॉन लिया है 3s2 को। अभी 3s2 का वहीं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही लेंगे, क्योंकि एक तो हम लोगों ने कंसर्न इलेक्ट्रॉन ले लेना भाई। अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, भागे यहाँ से, भागे, इसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अब कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा कैसे करेंगे? सिग्मा मतलब क्या होता है? रिपल्शन। तो रिपल्शन इज द सिग्मा दैट इज लीडिंग कांस्टेंट और द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, सिग्मा इज इक्वल टू 7 इंटू 0.35। क्यों 7 इंटू 0.35? क्योंकि n जो है वो ऐसे है। अभी इसका क्या है? 7 है यहाँ पे, 3 2 5 6 और एक 7 है ना, ये 7 है ना, तो यहाँ पे 7 हो गया, तो 7 हो गया यहाँ पे हमारा। तो 7 इंटू 0.35 समझ में आया क्या? 7 इंटू 0.35 हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ के क्या देखेंगे हम लोग कि 8 का, अब 0.25 यानी क्या है, -1 का कितना कंट्रीब्यूशन है? 0.85 है। तो 8 इंटू 0.25 प्लस 2 इंटू 1 हो गया। चलो अब इसको सभी को ऐड कर देंगे, समेशन करने के बाद जो आएगा 11.25, यही हमारा सिग्मा का वैल्यू होगा। अब Z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से माइनस कर देंगे 11 माइनस 25 को। समझ में आया? 1s2 2s2 2p6 अनदर एग्जांपल है। चलो अब थर्ड देखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी और एफ सब शेल के लिए जो है ना, फर्स्ट के लिए क्या इलेक्ट्रॉन डी और एफ में प्रेजेंट होंगे, उनके लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रुप मेड बाय द कंसर्न इलेक्ट्रॉन्स हैव नो कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो राइट साइड में जो ग्रुप मेड करेंगे ना कंसर्न इलेक्ट्रॉन्स के, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 ईच, एंड सी द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ दिस ग्रुप हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 each, और Z is equal 26 and Fe, and 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 3d6। ठीक है, and 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 and 4s2
तो सिग्मा फॉर द 3D क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.35 प्लस 18 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा इसका 19.35 हो जाएगा। जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो जेड माइनस सिग्मा, जेड यहाँ पे 26 है, 26 है ना, 26 किसका होता है बताओ, 26 किसका होता है। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि ये एफ ई का होगा, ठीक है। आप देखते हैं पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़, फाइनली पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़ पे आ गए हैं। तो रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स विद द चेंज इन द एटॉमिक नंबर इज नोन एज अ पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का होता है कि एक रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी एलिमेंट के जो कि चेंज इन द एटॉमिक नंबर का चेंज, उन्हीं को पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अब पीरियोडिसिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, सबसे पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोला था ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, अभी यहीं पढ़ लेते हैं। अभी उसके बाद इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ये पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ है, एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं। और सबसे पहले पीरियोडिसिटी है क्या, पीरियोडिसिटी वो है ना कि रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विद द चेंज इन द एटॉमिक नंबर इज़ नोन एज द पीरियोडिसिटी। अभी पीरियोडिसिटी इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो एटॉमिक रेडियस is the distance of the outermost shell from the center of the nucleus for an isolated atom। एटॉमिक रेडियस जो है ना वो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल का फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है ऑफ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द आइसोलेटेड एटम। देखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस क्या है, वो डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल का सेंटर से ऑफ द न्यूक्लियस फॉर एन आइसोलेटेड एटम। एक आइसोलेटेड एटम के लिए न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वही उसका एटॉमिक रेडियस है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट आइसोलेटेड एटम एक्सेप्ट फॉर द नोबल गैसेस। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि एटॉमिक आइसोलेटेड एटम आप पा लो, बट ये सिर्फ नोबल गैसेस में होता है, इसीलिए एक कैलकुलेट करना ही काफ़ी मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं एक तरीके से आइसोलेटेड एटम के लिए। बट एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना एटॉमिक रेडियस की, इसीलिए उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज कैलकुलेटेड इन द बॉन्ड स्टेट। एटॉमिक रेडियस जो है ना वो बॉन्डिंग स्टेट में ही जो है वो कैलकुलेट की जाती है कि अब बॉन्ड किस किस प्रकार के होते हैं। भाई आप देखो मज़ा, कोवैलेंट बॉन्ड जो आपने बहुत हार्ड लगता है वो चीज़ अब आ रही है यहाँ पे, बहुत हार्ड लगता है बच्चों, बहुत सस्ता सी एकदम आसान मस्त एकदम। फर्स्ट जो है वो कोवैलेंट रेडियस है, सेकंड जो है वो मेटालिक रेडियस है, थर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे वैंडर वॉल रेडियस है, आयोनिक रेडियस है। कोवैलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये सब हमने पढ़ा है 10th क्लास में। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कोवैलेंट रेडियस क्या है, अभी केस 1 देखो। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स दोनों के दोनों एटम सेम होते हैं। अरे दो एटम लिया उसी मॉलिक्यूल का, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम होते हैं ना, उसको होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि H2O2, O2 में OO और NH2 में HH, N में N2 में NN, NN इज़ द नाइट्रोजन। अभी देखो कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, R कोवैलेंट इज इक्वल टू DA-A/2। अभी DA क्या है, DA ये है डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियर। जब दोनों यहाँ पे बोले ना बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग में ही उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हाफ ऑफ द इनर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्ड इज नोन एज द कोवैलेंट रेडियस। हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवैलेंटली बॉन्ड। Now moving forward to the case 2 for the homonuclear molecules, that is Da minus B, that is equals to Ra plus B minus 0.09 delta En electronegativity। Now ये जो है वो एम्स्ट्रॉन का साइन है। तो Ra क्या है यहाँ पे, कोवैलेंट रेडियस ऑफ A है, कोवैलेंट रेडियस ऑफ A, एंड Rb इज़ द कोवैलेंट रेडियस ऑफ B। En इज़ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। केस 2 ये है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए केस 2 है। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब जो एक जैसे ना हो, यानी कि अलग अलग हो, H के साथ कोई और ले लो ऐसा करके, है ना। NO हो गया, NO, और भी CN हो गया, ये सारे है ना मॉलिक्यूल्स। Now second is the metallic radius. What is metallic radius? This is one of the half internuclear distance between two adjacent metals ions in the metallic lattice। metallic lattice में यानी कि वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो एडजेसेंट मेटल्स होते हैं उनकी आयोनिक डिस्टेंस का मेटालिक लैटिस।
अभी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, तो ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। सो आर एम इज इक्वल्स टू d/2 एंड आर कोवैलेंट इज़ लेस देन आर मेटेलिक, यानी कि रेडियस ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द रेडियस ऑफ द मेटेलिक। अभी वैंडर वॉल रेडियस के बारे में जानते हैं। वैंडर वॉल रेडियस क्या है? इट इज़ 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू identical non-bonded isolated atoms or two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecules of an element in the solid state, यानी कि it is 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, यानी कि ये 1/2 डिस्टेंस न्यूक्लियाई के बीच में आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स जो कि बिलोंग करते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम इन द सॉलिड स्टेट। आर वैंडर वॉल जो होते हैं वो इज इक्वल्स टू d/2, यहाँ पे इन आर वैंडर इज इक्वल्स टू d/2। इन द केस ऑफ इनर्ट gases generally van der Waal radius is defined so they have the largest size of in their respective period। सबसे ज़्यादा जो होता है वो वैन डर वाल होता है रेडियल रेजिस्टेंस में, देन रेडियस ऑफ द मेटेलिक, देन आर कोवैलेंट। सबसे कम कोवैलेंट का रेडियस, उसके बाद मेटेलिक का, उसके बाद वैन डर वाल का। कम मतलब सबसे कम कोवैलेंट का, उसके बाद उससे बड़ा मेटेलिक का, उससे बड़ा वैन डर वाल का। समझ में आया? था अभी एक चौथा भी तो है, आयोनिक वाला। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? कैटायन प्लस एनायन, यानी कि कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन जो नेगेटिवली चार्ज होता है ना। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायन नेगेटिवली चार्ज वाले को जब हम लोग बॉन्ड बनाते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसको बोलते हैं आयोनिक रेडियस। ये RC जो है ना वो रेडियस ऑफ कैटायन है, RA जो है वो रेडियस ऑफ एनायन है। ये दोनों बॉन्ड बनाए तो साइज़ ऑफ कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम। तो जो भी कैटायन का साइज़ होता है वो उसके पेरेंट एटम से स्मॉलेस्ट होता है। कैटायन जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है उसका साइज़ तो छोटा ही होगा ना भाई। अभी कुछ दे दिए हो पॉकेट से निकाल के तो पॉकेट की साइज़ छोटी हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इसीलिए उसकी साइज़ छोटी होती है उसकी पेरेंटल एटम से। समझ में आया? तो भाई बताओ अब आगे देखो रीज़न क्या है। विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन Z इफेक्टिव इंक्रीजेज एंड द साइज डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण से Z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज़ होता है। Z इफेक्टिव क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में नहीं पिछले पार्ट में डिस्कस किया है, तो वो आप देख लो। एंड द साइज डिक्रीजेस, Na का साइज़ बहुत बड़ा होता है Na प्लस साइज़ से, क्योंकि Na जो है वो पेरेंटल एटम है और Na प्लस उसका कैटायन है। प्लस चार्ज क्यों आया? नेगेटिविटी को दूर किया। नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही होती है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिविटी की तरह से कंसिडर करो। अगर कोई इंसान नेगेटिवली चार्ज है और उसको पॉजिटिव बनना है तो वो इलेक्ट्रॉन को फेंका तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगा, क्योंकि नेगेटिविटी भागी पॉजिटिविटी बढ़ी। समझ में आया था? देखो यहाँ पे साइज़ हुआ है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, इसका साइज़ बढ़ जाएगा। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ के चला गया इसका साइज़ घट गया, ठीक है, इसका साइज़ घट गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया इसका साइज़ बढ़ गया। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। समझ में आया तो क्या बोलने का? Z इफेक्टिव इंक्रीज़ करेगा तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा, ये भी एक बात है। साइज़ ऑफ एनायन इज़ ऑलवेज बिगर दैन इट्स पेरेंटल एटम। मैंने बताया ना, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मान लो ये साइज़ था पहले, अब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बड़ा हो गया है ना, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो, साइज़ ऑफ द एनायन इज़ ऑलवेज बिगर दैन इट्स पेरेंटल एटम, यानी कि एनायन का जो साइज़ है वो उसके पेरेंटल एटम से हमेशा बड़ा होता है। रीज़न विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन Z इफेक्टिव डिक्रीजेज एंड द साइज़ ऑफ द एनायन इंक्रीजेज। RCl का जो साइज़ है वो लेस होता है RCl माइनस के साइज़ से। Z इफेक्टिव डिक्रीजेज, सो ये Z माइनस सिग्मा इंक्रीजेज। Z is equals to 17, Z is equals to 17, Z is the atomic number, P is the proton, 17 इलेक्ट्रॉन 17, और इसमें इलेक्ट्रॉन 18 होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसीलिए तो ये क्या बन गया? एनायन बन गया। ओके, नाउ Z अपॉन E का जो रेशियो होगा वो यहाँ पे तो 1 है मगर यहाँ पे लेस देन 1 है, ठीक है। Z इफेक्टिव कम तो साइज़ बढ़ेगी। ऑर्डर ऑफ साइज़ क्या होगा? A जो कि पेरेंटल एटम है वो सबसे बड़ा, A प्लस उससे छोटा, फिर A2 प्लस उससे भी सबसे छोटा।
बी सबसे छोटा पेरेंटल एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो बी माइनस उससे बड़ा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बी माइनस टू जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया बोरोन ने, तो उसका साइज़ सबसे बड़ा। आई प्लस सबसे छोटा, देन आई उससे बड़ा, देन आई माइनस उससे भी बड़ा। आई जो है वो पेरेंटल एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो भाई पेरेंटल एटम से छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पेरेंटल एटम से बड़ा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होते हैं? स्पीशीज़ हैविंग द सेम नंबर ऑफ, ये क्या है चीटी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं जा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होते हैं? स्पीशीज़ हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। यानी कि स्पीशीज़ जिनके पास ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। यानी कि स्पीशीज़ जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चीटी को मैंने छोड़ दिया है, चिंता मत करो उसके लिए, जाओ यहाँ से जाओ। ठीक है, चीटी भाग गई। अभी देखो एग्जाम्पल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ देखो, अभी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। इनका Z तो अलग है, P भी अलग है, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग है वो बिल्कुल सेम है। सो ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। साइज डिक्रीजेस Z अपॉन ही इंक्रीजेस। ठीक है, अभी इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, अब ये देखो FON, फ़ोन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का ही एक एग्जांपल है। समझ में आएगा? ओके, देखो यहाँ थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, है ना। अभी देखो साइज डिक्रीजेस, तो अभी इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज़ द साइज़। यानी कि जितनी हाईएस्ट वैल्यू होगी ना पॉजिटिव चार्ज की, उसकी साइज़ उतनी ही छोटी होगी। एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव साइज़ लार्जर इज़ द साइज़। कैसे भैया? जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना छोटा साइज़, जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया उतना उसका साइज़ बढ़ गया। गेन कर दिए इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इफ़ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस देन द लार्जर इज़ द साइज़। अभी नाउ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, ये बताया गया है साइज़ का ऑर्डर। अभी N3 माइनस का साइज़ सबसे बड़ा है क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन खाए हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन खा चुका है वो। अभी O2 माइनस का भी साइज़ उससे थोड़ा सा छोटा है, बट हाँ फ्लोरीन माइनस से तो बड़ा ही है क्योंकि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन खाया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए। Na प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो उसका साइज़ छोटा हो गया। Mg ने 2 छोड़ दिया, उसका उससे भी छोटा। Al3 ने और छोड़ दिया 3, उसका उससे भी छोटा। सब छोटा किसका साइज हो गया? Al3 प्लस का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन छोड़े। PSCl वही सेम कहानी है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो सबसे बड़ा साइज। S2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उससे बड़ा साइज, और Cl ने उससे बड़ा साइज। अभी ग्रुप हैविंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ इज़, कौन सा है भाई बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़? तो आप कैलकुलेट करके बताना, मैं क्यों करूँ कैलकुलेट इसका, आपको कल करना है ना, आप करो और कमेंट करो, आंसर मैं वेरीफाई करा दूँगा। द पेयर इन विच द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज़, आइसो इलेक्ट्रिक विथ Al3 प्लस इज़ Br माइनस B3 प्लस, आप ये बताते हैं 2 प्लस, सॉरी। अभी देखो इस क्वेश्चन के बाद आता है मेन टॉपिक, दैट फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। यानी कि एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। अभी उनका जो भी आंसर है, मैंने पिछले जो 3 क्वेश्चन दिए थे आपने अगर सॉल्व कर लिया हो तो ठीक है, तो अभी आप पॉज के सॉल्व करो। उनका आंसर है A रेस्पेक्टिवली, यानी लगातार। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस क्या क्या है? सो पहला तो है वो नंबर ऑफ़ शेल्स, जितने नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे वो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे। एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। नाउ सेकेंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज़ डिक्रीज़ होगा, और अगर साइज़ बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, और सिग्मा जो है ना, सिग्मा जो रिपल्शन है, तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, और सिग्मा घटेगा तो एटॉमिक रेडियस भी घटेगा। ठीक है, फिर से चीटी आ गई है, इसको फिर हटाना पड़ेगा। चलो उसको साइड कर दिया हम लोगों ने, अभी आगे देखते हैं।
periodic variation of atomic radius. The normal elements S and P block elements in a period left to right Z effective increases as a result size decreases. लेफ्ट टू राइट जाने पर तो Z इफेक्टिव इंक्रीज़ करता ही है, उसी कारण से जो साइज़ है ना वो डिक्रीज़ करता है. एग्जाम्पल देखो, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बोनेट ऑक्सीजन फ्लोरीन. सबसे बड़ा साइज़ लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन कार्बोनेट ऑक्सीजन फ्लोरीन है ना. अभी हम लोग देखे थे कि लेफ़्ट टू राइट जाने से Z इफेक्टिव इंक्रीज़ करता है, तो उसी के कारण से साइज़ भी डिक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट भी तो जा रहे हैं ना, ऊपर से पढ़ा था ना, ऊपर से नीचे आते वक्त क्या. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करेगा. ये हमने पहले भी पढ़ा है इस ब्लॉक में. तो अब सेकंड क्या है, NaMg AlSi PsCl Na सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. इनका जो साइज़ है वो रेस्पेक्टिवली डिक्रीज़ करते जा रहा है. ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. अभी एक्सेप्शन क्या है, आपको लग रहा होगा कि लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बोनेट ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नियॉन सबसे ज़्यादा आगे आ जाता है, क्योंकि ये नोबल गैस है ना, तो इसकी साइज़ सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इसका वैन डेर वाल रेडियस है, सबसे बड़ा रेडियस हो जाएगा. और उसके बाद फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो ये है इसका रियल एक्सेप्शन के साथ में. अभी नोबल गैसेस हैव द लार्जेस्ट साइज़ इन देयर रिस्पेक्टिव. नोबल गैसेस का जो लार्जेस्ट साइज़ होता है रिस्पेक्टिव में. In a group, number of shells increases, Z effect remains constant. Down the group, atomic radius and the ionic radius increases generally. अब ये एक ग्रुप में ना जो भी नंबर ऑफ़ शेल्स है ना, जैसे ही वो इंक्रीज़ करेंगे तो Z इफेक्टिव जो है वो कांस्टेंट ही रहता है. और डाउन द ग्रुप ना एटॉमिक रेडियस एंड द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस डिक्रीज़ करता है जनरली, सब में नहीं. चलो आगे देखते हैं. अब लिथियम NaKRbCs, तो साइज़ का ऑर्डर है ये. सबसे बड़ा साइज़ सीजियम का, फिर रुबिडियम का, फिर K यानी पोटेशियम का, Na मैग्नीशियम का, लिथियम का सबसे छोटा. उस तरीके से बेरियम सबसे बड़ा, स्ट्रोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम सबसे छोटा, बेरिलियम का सबसे बड़ा, बैरियम का. बैरियम और बेरिलियम. एक्सेप्शन एक और है इसमें, ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, BAlGaInTl. अब क्या है कि R एल्युमिनियम जो है ना वो बड़ा होता है R गैलियम से. रीज़न है ना पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि गैलियम का जो रेडियस पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण से वो छोटा होता है एल्युमिनियम से. मगर ऊपर क्या आ रहा है कि गैलियम तो बड़ा है, पर ऐसा है नहीं, इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं. ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमने जो रीज़न्स पीछे पढ़े हैं उन्हीं का बस क्लास उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं. नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का, इसीलिए हम लोग उसका यूज़ करें यहाँ पे. तो एनर्जी जो है वो 3D की बहुत कम होती है 4p से. तो 3D में n = 3 एंड 4p में n = 4 है. L = 2 है 3D में, तो वहाँ L = 1 है. अभी n+1 यहाँ पे 5 होता है D में, तो वहाँ पे n+1 भी 5 होता है. तो n बढ़ रहा है तो एनर्जी भी तो बढ़ेगी. तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, SPDF होता है. तो D और F तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होते हैं ना, D और F. तो वैसे ही यहाँ पर इसीलिए RL जो है वो ग्रेटर देन RGA है, RAL. रीज़न जो है वो पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स. एक्सेप्शन, ग्रुप 13 जो है वो एक्सेप्शन है. R इंडियम इज़ लेस देन R टेलुरियम. एनर्जी जो है ना वो 4F की